Hello everyone, welcome to today's discussion on section 6A and citizenship। मतलब ये हुआ सेक्शन 6A और नागरिकता महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भी काफी चर्चा में रहा अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट्स के कुछ फैसले आए हैं जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। In a landmark verdict, the Supreme Court upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act 1955. What is a Section 6A? How is it legislative corollary to the Assam record? Assam Accord. Moreover, how can Indian citizenship be acquired? Take a look. मीन्स हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 की सेक्शन 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। तो यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि सेक्शन 6A क्या है, यह असम समझौते के लिए विधायी परिणाम कैसे है, इसके अलावा भारतीय नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दिस टॉपिक्स बिलोंग्स टू इंडियन पॉलिटी जनरल स्टडीज पेपर 2 मेंस सिविल फॉर सिविल सर्विसेज मेन एंड आल्सो फॉर स्टेट पीसीएस। सिलेबस में यदि आप नजर डालें तो देखिए यूपीएससी सिलेबस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी आप देखें तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड गाइड्स यूज प्रीलिम्स के सिलेबस में है। मेंस एग्जाम्स के सिलेबस में देखें तो जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। Means these topics relate prelims as well as mains both. What is the issue on this topic? The Supreme Court upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act 1955 on October 17. This section grants citizenship to immigrants who entered Assam before March 24, 1971. In this context, understanding the issue of citizenship in India from a broader perspective is crucial. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 की सेक्शन 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। यह सेक्शन 24 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करती है और इस संदर्भ में भारत में नागरिकता के मुद्दे को व्यापक अप्रोचेस से समझना इंपॉर्टेंट है। वाई What will you learn from this lecture? What are the constitutional provisions for citizenship in India? Means भारत में नागरिकता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? सेम एज इट इज, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन जनरेट होते हैं। लाइक इज हाउ डज द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 govern the acquisition and loss of citizenship? Means नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्ति और हानि को किस प्रकार नियंत्रित करता है? What is the section 6A of the Citizenship Act 1955 and how are it introduced following the Assam
एक्वायर्ड ऑफ 1985 मींस नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 से क्या है और 1985 के असम समझौते के बाद इन्हें कैसे लागू किया गया। Why was section 6A challenged in the Supreme Court and what is the recent Supreme Court verdict on it? Means सेक्शन 6A को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला क्या है, इसी प्रश्न से रिलेटेड जो चर्चा में रहा है और इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूं। नाउ वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस। Now let us start questions first. What are the constitutional provisions for citizenship in India? This is the main important questions. Citizenship is a specific legal relationship between an individual and a state. It is a legal status that grants a person the right to reside in country and to receive protection from that country. Citizenship also entails specific rights, obligations, and responsibilities that citizens possess but that non-citizens do not. In India, like in every other democratic country, there are laws related to citizenship. The Indian Constitution contains articles that outline the provisions for citizenship. The Constitution establishes a single form of citizenship known as national citizenship without differentiating based on states. The term citizenship is not explicitly defined in the Constitution, but Articles 5 to 11 provide the framework for citizenship at the time of the constitutional commencement. These provisions outline the methods of acquiring citizenship such as birth, domicile, and descent, as well as circumstances that disqualify individuals from obtaining Indian citizenship. मतलब यह हुआ कि नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच एक स्पेसिफिक लॉ है। यह कानूनी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को किसी देश में निवास करने और उसे देश से सिक्योरिटी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। नागरिकता में विशिष्ट अधिकार, दायित्व और जिम्मेदारियां भी शामिल हैं जो नागरिकों के पास होती हैं लेकिन गैर नागरिकों के पास नहीं होती। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नागरिकता से संबंधित कानून है। भारतीय संविधान में ऐसे आर्टिकल हैं जो नागरिकता के प्रावधानों को रेखांकित करते हैं। संविधान नागरिकता का ही रूप स्थापित करता है जिसे राष्ट्रीय नागरिकता के रूप में जाना जाता है और राज्यों के आधार पर भेदभाव के बिना। संविधान में नागरिकता शब्द को स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल 5 to 11 कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ के समय में ही नागरिकता के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। यह प्रावधान नागरिकता प्राप्त करने के तरीके जैसे जन्म, अधिवास, वंश के साथ साथ उन परिस्थितियों को रेखांकित करता है जो व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से अयोग्य बनाती है। यहां पर यह जानना जरूरी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन January 26, 1950. Important line. However, it's important to note that the section regarding citizenship were implemented on the day of the Constitution's adoption, which was November 29, 1949. These citizenship provisions applied to the entire country except for the state of Jammu and Kashmir. आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हालांकि यह भी जानना जरूरी है कि नागरिकता से संबंधित सेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के अपनाने के दिन यानी 29 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। नागरिकता से संबंधित यह प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश पे लागू था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 का स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि अब नहीं है। ठीक है,
अब अन्य राज्यों की तरह जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी कानून सेम है। मीन्स आर्टिकल 5 यहां पर देखिए, जो हम बात कह रहे हैं क्या सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल 5 to 11 में प्रावधान है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है और ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में कि आर्टिकल 5 में क्या प्रावधान है। आर्टिकल 5 प्रोवाइड सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. Article 7 rights of citizenship of certain migrants to Pakistan. Article 8 provides rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. Article 9 provides persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens. Article 10 provides continuance of the rights of citizenship, and Article 11 provides Parliament to regulate the right of citizenship by law. तो ये जो आर्टिकल है आपके याद होने चाहिए आपके माइंड में किसमें क्या है। इन आर्टिकल्स को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 स्पेसिफिकली एड्रेसेस सिटीजनशिप एट द आउटसेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट एस्टैब्लिशेस ए dual requirement for granting citizenship, which includes being domiciled in India and meeting one of three criteria. Three criteria क्या है? Number 1 is being born in Indian territory. Second is having at least one parent born in Indian territory. Third is being a resident of Indian territory for a minimum of 5 consecutive years preceding the constitutional commencement. मतलब यहां नागरिकता प्रदान करने के लिए दोहरी आवश्यकता स्थापित करता है। इसमें भारत में निवासी होना चाहिए और साथ ही साथ उसके 3 पैरामीटर्स हैं, 3 मापदंड हैं। उन 3 मापदंडों में से किसी एक मापदंड को पूरा करना शामिल है, जैसे भारतीय क्षेत्र में पैदा होना, कम से कम एक माता पिता का भारतीय क्षेत्र में जन्म होना, या संविधान के लागू होने से पहले लगातार 5 वर्षों तक भारतीय क्षेत्र का निवासी होना। नेक्स्ट इज आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 provides the provisions concerning the right of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. मीन्स पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 specified the rights of citizenship of certain migrants who migrated to the territory of Pakistan and returned to the territory of India after the 19th day of July 1948. मतलब जो पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए थे और 19 जुलाई 1948 के बाद भारत के क्षेत्र में वापस आ गए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 presents the rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. मीन्स भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों को प्रस्तुत करता है। Article 9 explains that persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state will not be citizens. According to it, no person shall be a citizen of India if they have voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. Means किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नागरिकता नहीं होगी। मतलब वो नागरिक नहीं होगा यदि उन्होंने फॉरेन कंट्री की नागरिकता ले ली है स्वेच्छा से। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। यह प्रावधान करता है।
नेक्स्ट इज आर्टिकल 10 डिस्कसेस द कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मीन्स नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता पर इसमें चर्चा की गई है। आर्टिकल 11 explains Parliament's power to make provisions regarding the acquisition and termination of citizenship and other related matters, means इसके नागरिकता के अधिकारों समाप्ति तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान बनाने की पार्लियामेंट की शक्ति की व्याख्या करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 को हमने एक्सप्लेन किया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, How does the Citizenship Act of 1955 govern the acquisition and loss of citizenship? इसका मतलब यह हुआ कि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्ति और हानि को किस प्रकार नियंत्रित करता है। तो ये जो मैंने सवाल लिया सामने, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वर ओरिजिनली इंटेंडेड टू डिफाइन सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 aimed to outline the substantive aspects of citizenship. Thereafter it deals with matters relating to acquisitions, determination and termination of Indian citizenship after the commencement of the constitution. मतलब संविधान लागू होने पर नागरिकता को परिभाषित करना था। हालांकि 1955 के नागरिकता अधिनियम का उद्देश्य उसके बाद नागरिकता के मूल पहलुओं को रेखांकित करना था। यह संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से रिलेटेड है। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब नागरिकता का अधिग्रहण। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, Indian citizenship can be acquired under any of the following provisions, like its citizenship by birth, section 3. In 1955, the law provided that anyone born in India on or after January 1st, 1950 would be deemed a citizenship by birth. This was later amended to limit citizenship by birth to those born between January 1st, 1950 and January 1st, 1987. Again, it was amended by the Citizenship Amendment Act 2003. According to it, those born after December 3rd, 2004 will be deemed a citizenship of India by birth if one parent is an Indian and the other is not an illegal immigrant. Thus, if one parent is an illegal immigrant, the child born after 2004 will have to acquire Indian citizenship through other means, not simply by birth. The law describes an illegal migrant as a foreigner who enters the country without valid travel documents like a passport and visa, or enters with valid documents but stays beyond the permitted time period. मतलब यह है कि जन्म से नागरिकता जिसका कि प्रावधान धारा 3 में है, 1955 में कानून में प्रावधान था कि 1 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति जन्म से नागरिक माना जाएगा। लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके जन्म से नागरिकता को 1 जनवरी 1950 और 1 जनवरी 1987 के बीच पैदा हुए लोगों तक सीमित कर दिया गया। और इसके बाद फिर से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संशोधित किया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए लोगों को जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा, और यदि एक माता पिता भारतीय है और दूसरा अवैध अप्रवासी नहीं है। इसी प्रकार यदि एक माता पिता अवैध अप्रवासी है तो 2004 के बाद पैदा हुए बच्चे को केवल जन्म से नहीं बल्कि अन्य तरीकों से भारतीय नागरिकता हासिल करनी होगी। कानून एक अवैध प्रवासी को एक विदेशी के रूप में वर्णित करता है जो पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप बाय डिसेंट सेक्स, मीन्स वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता, जिसका प्रावधान सेक्शन 4 में है।
ए पर्सन born outside India and who has at least one Indian parent will be granted citizenship provided that the birth is registered within 1 year with the Indian consulate in the jurisdiction। मतलब भारत के बाहर जन्मे और कम से कम एक भारतीय माता पिता वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि जन्म का रजिस्ट्रेशन 1 वर्ष के भीतर अधिकार क्षेत्र में भारतीय वाणिज्य दूतावास में कराया जाए। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन विच प्रोवाइडेड सेक्शन 5, यानी सेक्शन 5 में नागरिक पंजीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान है। दिस इज फॉर पर्सन्स रिलेटेड टू एन इंडियन सिटीजनशिप थ्रू मैरिज और एंसेस्ट्री, मीन्स ये उन व्यक्तियों के लिए जो विवाह या वंश के माध्यम से किसी भारतीय नागरिक से संबंधित हैं। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता, जिसका प्रावधान सेक्शन 6 में है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, a certificate of naturalization can be granted to a person who is not an illegal immigrant and has resided in India continuously for 12 months before making an application. Additionally, in the 14 years before the 12 months period, the person must have lived in India for at least 11 years। मतलब यहां पर सेक्शन 6 ये कहता है कि प्राकृतिकीकरण का प्रमाण उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जो अवैध प्रवासी नहीं है और एप्लीकेशन देने से पहले करने से अप्लाई करने से पहले लगातार 12 महीने तक भारत में रहा है। इसके अलावा 12 महीने की अवधि से पहले के 14 वर्षों में व्यक्ति को कम से कम 11 साल भारत में रहना चाहिए। नोटेबली The Citizenship Amendment Act 2019 has reduced the period of citizenship by naturalization for migrants belonging to the Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian communities from 11 years to 5. It also includes a provision for granting citizenship to migrants belonging to these communities who entered India before December 31st, 2014 from Pakistan, Afghanistan or Bangladesh। The Citizenship Amendment Act carved out an exceptions for the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura as included in the 6th schedule to the Constitution and the area covered under the inner line। मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों से संबंधित प्रवासियों के लिए प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। इसमें उन समुदायों से संबंधित प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान भी शामिल है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भारत में आए थे। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों और इनर लाइन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए अपवाद बनता है। Do you know, in the context of citizenship by naturalization, if in the opinion of the central government, the applicant has rendered distinguished service to the cause of science, philosophy, art, literature, world peace, or human progress generally, it may waive all or any of the conditions in the act। This is how the Dalai Lama or Adnan Sami, the Pakistani singer, was granted Indian citizenship। जैसा कि आप जानते हैं कि ये निर्वासित रूप से हमारे भारत में रह रहे हैं, तो प्राकृतिक नागरिकता के संदर्भ में केंद्र सरकार की राय में आवेदक ने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या सामान्य रूप से मानव प्रगति के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान की है तो इस एक्ट की सभी या किसी भी शर्त को माफ कर सकता है। और इसी के तहत दलाई लामा या पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को भारतीय नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मीन्स क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता, जिसका प्रावधान सेक्शन 7 में है। सेक्शन 7 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एड्रेसेस सिटीजनशिप
by incorporation of territory. This means that when a territory becomes part of India, the central government has the authority to grant citizenship to individuals based on their connection to that territory. मतलब 1955 की धारा 7 क्षेत्र के समावेश के द्वारा नागरिकों को संबोधित करती है। इसका मतलब यह है कि जब कोई क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो केंद्र सरकार के पास उस क्षेत्र में उसके संबंध के आधार पर व्यक्तियों को नागरिकता देने का अधिकार होता है। अब हम बात करेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, कि नागरिकता की समाप्ति कैसे की जाती है। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इंक्लूड प्रोविजंस रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 8 डील्स विद द renunciation of citizenship, section 9 covers the termination of citizenship, and section 10 explains the basic of deprivation of citizenship. मतलब 1955 में नागरिकता की समाप्ति से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। उदाहरण के लिए सेक्शन 8 नागरिकता के त्याग से संबंधित है, तो सेक्शन 9 नागरिकता की समाप्ति को कवर करती है, तो वहीं सेक्शन 10 नागरिकता से वंचित करने के आधार की व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड हाउ वाज इट इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग द असम एक्ट ऑफ 1985। मींस नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A क्या है और 1985 के असम समझौते के बाद इसे कैसे लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। असम एक्वार्ड्स वाज साइंड ऑन अगस्त 15, 1985 बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया and the Assam. The All Assam Students Union and the All Assam Gan Sangram Parishad in Delhi. It came at the end of 6-year mass movement spearheaded by students against illegal migrations from East Pakistan or Bangladesh and aimed to safeguard Assam's rich cultural, linguistic and social identity. A key element of the Assam Accord was determining who was a foreigner in the state. Clause 5 of the Assam Accord states that the January 1st, 1966 shall serve as the base cut-off date for the detection and deletion of foreigners, but it also contains provisions for a regularizations for those who arrived in the state after the date and up till March 24, 1971. Here we see that section 6A was introduced in the Citizenship Act of 1955 to give legal effect to clause 5 of the Assam Accord. Section 6A grants citizenship to anyone who entered Assam from Bangladesh before January 1st, 1966. It also recognizes those who arrived between January 1st, 1966 and March 24, 1971 as Indian citizens, but without voting rights for 10 years. Only immigrants who entered illegally after March 25, 1971 are considered illegal and ineligible for citizenship. मतलब यह हुआ कि असम समझौते पर 15 अगस्त 1985 को भारत और असम सरकार, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे। यह पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से अवैध प्रवास के खिलाफ छात्रों द्वारा चलाए गए 6 साल के जन आंदोलन के अंत में आया था और इसका मकसद था कि असम की समृद्ध सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान की रक्षा करना। असम समझौते का एक प्रमुख तत्व यह भी निर्धारित करना था कि राज्य में कौन विदेशी है। असम समझौते के सेक्शन 5 में कहा गया कि 1 जनवरी 1966 विदेशियों की पहचान और हटाने के लिए आधार कट ऑफ तिथि के रूप में काम करेगा, लेकिन इसमें उस तिथि के बाद और 24 मार्च 1971 तक राज्य में आने वालों के नियमितीकरण के प्रावधान भी शामिल है। यहां हम ये देखते हैं कि असम समझौते के खंड 5 को कानूनी प्रभाव देने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6 से पेश की गई थी। धारा 6 से 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करती है और ये उन लोगों को भी भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता देती है जो 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच आए थे, लेकिन उन्हें 10 साल तक मतदान का अधिकार नहीं है। केवल
5 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को ही अवैध और नागरिकता के लिए योग्य माना जाता है। अब हम बात करेंगे यहां पर एक चीज और जानना जरूरी है आप लोगों को, ट्रेटी ऑफ यांडाबो यानी यांडाबो की संधि। दरअसल ये आप ये जाने कि 1826 में यांडाबो की संधि ने असम में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की और अंग्रेजों ने असम को एक सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में देखा और बड़े पैमाने पर अप्रवास को प्रोत्साहित किया। द ट्रेटी ऑफ यांडाबो इन 1826 marked the beginning of British rule in Assam. The British viewed Assam as a frontier and encouraged large-scale immigrations. तो ये पहले क्या था मेरे युग टाइम में, ये भी बताना आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज सेक्शन 6 challenged in the Supreme Court and what is the recent Supreme Court verdicts on it? धारा 6 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई और इस पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला क्या है, जो कि चर्चा में था, न्यूज़पेपर की सुर्खियों में था। सेक्शन 6 was contested on the grounds that it violates constitutional provisions on citizenship and goes against the right to equality by setting a different yardsticks for Assam compared to the rest of country. The petition had also alleged that by allowing migrations, the clause hurts the ability of Assam's indigenous communities to protect their culture and that it therefore violates Article 29 of the Constitution. In its over 400-page long verdicts, the Supreme Court has engaged with all these arguments. मतलब सेक्शन 6A को इस आधार पर चैलेंज दिया गया कि यह नागरिकता पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और देश के बाकी हिस्सों की तुलना में असम के लिए अलग मानदंड निर्धारित करके समानता के अधिकार के खिलाफ जाती है। याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया था कि प्रवास की अनुमति देकर यह पार्ट असम के स्वदेशी समुदायों की अपनी संस्कृति की रक्षा करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 29 का उल्लंघन करता है। और इस तरह से देखा जाए तो अपने 400 से अधिक पेजों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी तर्कों पर विचार किया। The Supreme Court in its verdict upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act 1955 and called for the stricter implementation of laws against illegal immigration and judicial monitoring of the implementation of immigration and citizenship legislations. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 की सेक्शन 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, साथ ही अवैध अव्रजन के खिलाफ कानूनों के सख्त क्रियान्वयन तथा अव्रजन और नागरिकता कानूनों के क्रियान्वयन की न्यायिक निगरानी का आह्वान किया। वाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस सूर्यकांत M.M. Sundaresh and Manoj Mishra upheld the constitutional validity. Justice J.B. Pardiwal dissented। मतलब इन सभी न्यायाधीशों ने संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस J.B. पारदीवाला ने इस पर असहमति जताई। कहने का मतलब यह है CJI चंद्रचूड़ said that Section 6A is not violative of Article 6 and Article 7 of the Constitution, which prescribes a cut-off date for conferring citizenship for the migrants from East and West Pakistan at the commencement of the country Constitution, that is January 26, 1950। मतलब चंद्रचूड़ का यह कहना था कि सेक्शन 6 से संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 का उल्लंघन नहीं करती है, जो संविधान के प्रारंभ होने पर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की कट ऑफ तिथि यानी 26 जनवरी 1950 निर्धारित करते हैं। लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 6 वाज टू बैलेंस द humanitarian need of migrants of Indian origin and the impact of migration
on the economic and cultural needs of Indian states, said CJI चंद्रचूड़। मतलब चंद्रचूड़ ने कहा कि सेक्शन 6A का विधायी उद्देश्य भारतीय मूल के प्रवासियों की मानवीय जरूरतों और भारतीय राज्यों की आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों पर प्रवास के प्रभाव को संतुलित करना है। Justice Suryakant and Justice M.M. Sundaresh and Manoj Mishra said, Section 6A falls within the bonds of the Constitution and does not contravene the foundational principles of fraternity, nor does it infringe upon Article 6 and 7, Article 9, Article 14, Article 21, Article 29, Article 326 और आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जस्टिस सूर्यकांत और एमएम सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने यह कहा कि सेक्शन 6 से कॉन्स्टिट्यूशन की सीमाओं के अंतर्गत आती है, यह भाईचारे के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है और नहीं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6, 7, 9, 14, 21, 29, 326 या 355 का उल्लंघन करती है। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट टेक्स ए लिबरल एंड एक्सपेंसिव व्यू ऑफ सिटीजनशिप। मतलब इनका निर्णय नागरिकता के प्रति उदार और व्यापक दृष्टिकोण रखता है। सीजेआई चंद्रचूड़ सेट्स द टोन बाय ऑब्जर्विंग दैट चैलेंजेस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए इंस्टीट्यूट रिक्वायर द कोर्ट टू टेक ए फ्लेक्सिबल अप्रोच। सेक्शन 6A as he and 3 of his colleagues on the bench note was the legislative corollary to the Assam Accord. The task before the lawmark makers was to balance the humanitarian needs of migrants of Indian origin and its impact on economic and cultural needs of Indian states. The Supreme Court has endorsed the cut-off date for meeting this imperative. It held the March 25, 1971 cut-off rationale on two grounds. One, the illegal migrants determination by tribunals Act 1983 sets this cut-off. Moreover, the Pakistan Army launched Operation Searchlight to curb the nationalist movement in East Pakistan on this day. The migrants before the operation, CJI Chanchur says, were considered to be migrants of partition towards which India had a liberal policy. The petitioners argued that the constitution upholds national fraternity, not global fraternity. In an important section of the verdicts, Justice Suryakant goes into constitutional assembly debate to arrive at a broader views of this principle. In the Indian constitutional context, fraternity assumes an inclusive role, aligned with the broader goals of social justice, he points out. He terms the petitioner view restrictive. It allows them to choose their neighbor and says it runs contrary to the ethos envisaged by the Constituent Assembly. The court's dynamic reading of citizenship that is sensitive to the imperative of equality and upliftment is significant at the time when debate over setting the parameter of Indian nationalism continue to rage. मतलब यहां पर सीजेआई ने यह टिप्पणी करके माहौल तैयार किया कि किसी कानून की संवैधानिकता से जुड़ी चुनौतियों के लिए न्यायालय को फ्लेक्सिबल रुख अपनाने की जरूरत होती है। जैसा कि उन्होंने पीठ में शामिल उनके 3 सहयोगियों ने कहा कि सेक्शन 6 से असम समझौते का विधायी परिणाम था। सांसदों के सामने काम भारतीय मूल के प्रवासियों, मानवीय जरूरतों और भारतीय राज्यों की आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों पर इसके प्रभाव के बीच संतुलन बनाना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनिवार्यता को पूरा करने के लिए कट ऑफ डेट का समर्थन किया। उसने 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट को 2 आधारों पर तर्कसंगत माना। पहला, अवैध अप्रवासी अधिनियम 1983 इस कट ऑफ को निर्धारित करता है।
इसके अलावा इस दिन पूर्वी पाकिस्तान में राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। सीजेआई ने कहा कि ऑपरेशन से पहले प्रवासियों को विभाजन के प्रवासी माना जाता था, जिसके प्रति भारत की नीति उदार थी। यहां पर याचिकाकर्ताओं ने यह लॉजिक दिया कि संविधान राष्ट्रीय बंधुत्व को बनाए रखता है, वैश्विक बंधुत्व को नहीं। फैसले के महत्वपूर्ण हिस्से में जस्टिस सूर्यकांत ने इस प्रिंसिपल के व्यापक अप्रोच पर पहुंचने के लिए संविधान सभा की बेंचों में जाते हैं। वे कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संवैधानिक संदर्भ में बंधुत्व एक समावेशी भूमिका निभाता है, जो सामाजिक न्याय के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित होता है। वे याचिकाकर्ता के अप्रोच को प्रतिबंधात्मक बताते हैं या उन्हें अपने पड़ोसी को चुनने की अनुमति देता है और कहते हैं कि यह संविधान सभा द्वारा परिकल्पित लोकाचार के विपरीत है। न्यायालय का नागरिकता का गतिशील पाठ, जो समानता और उत्थान की अनिवार्यता के प्रति संवेदनशील है, ऐसे समय में इंपॉर्टेंट है जब भारतीय राष्ट्रवाद के मापदंडों को निर्धारित करने पर बहस जारी है। This lecture is very important for civil services exam and state PCS both. So आप इस पर गंभीरता से सुनकर के प्रश्नों का अभ्यास करें, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को याद रखें। और तो आज इतना ही, धन्यवाद।